everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you all are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. आज हम लोग फाइबर टू फैब्रिक जो कि चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम योर क्लास 7 साइंस वो डील करने वाले हैं एंड टुडे इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट फॉर दिस. तो आज हम लोग पार्ट 1 से डील करेंगे गाइज इन आवर अपकमिंग सेशंस और अपकमिंग वीडियोस. मीन्स नेक्स्ट वीक जो वीडियो आएगा नेक्स्ट मंडे, इसका पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें इस चैप्टर का हम लोग खात्मा करेंगे. वी आर गोइंग टू completing this chapter in the second session. So this is the first session in which we are going to be doing the 50% of the chapter. So begin करने से पहले let me tell you about my Telegram. So for all the study material that you need guys, you have to join me on Telegram. So as you all know that this time I had said you that you will be getting all the study material on our channel and yeah. So if you want to get those study material then you have to go to the link provided in the description. First of all you have to install the Telegram app. The logo is something like this. So install the Telegram app, then click on the link in description box. The link in the description box is of actually Telegram channel of mine. So this is the profile. So Jyoti Verma, hello everyone, this is my official channel and this is how you have to get it. So this is the logo of Telegram. So join me there. We are going to be having so much of fun. So now guys, animal fibers, wool and silk. Let's know about these two animal fibers. So first of all, a quick introduction for you all to the chapter. So let me bring a blank slide here for the introduction. Oh my god. Okay guys, wait a second and I'll be on the spot. Yes. So now let's do a quick introduction. So for the introduction, first of all, what are animal fibers? So animal fibers, plant fibers and synthetic fibers are the three different types of fibers that you need to know about. So in class 6 you have already learned what exactly fibers is, what exactly fabric is. Fibers are woven to fabric, right? So animal fibers are those fibers which are obtained from animals. Plant fibers are those fibers which we actually get from plants and not animals. So like cotton and jute that we learned in class 6. So in class 6 you learned about plant fibers, in class 7 you are going to be learning about animal fibers that are wool and silk, and in class 8 you are going to be learning about the synthetic fiber that is rayon, nylon, acrylic. So those synthetic fibers are those fibers which are man-made fibers. Means they have been made artificially using chemicals, using certain chemicals. So I hope you got it till here through the blank slide that I used. And now let's learn about wool first of all. So wool is one of those very famous animal fibers. So wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. The very famous source of wool is your sheep exactly. So these are the wool yielding animals, which are these animals, sheep, goat, yak and some other animals are your wool yielding animals because they bear wool on their body. मतलब उनकी जो body होती है guys, उनकी body के ऊपर क्या होता है? wool होता है. wool क्या होता है? मतलब आपका it is an animal fiber. Okay. Now do you know why these animals have a thick coat of hair? मतलब आप देखो, आपने इन animals को देखा होगा, they have a very thick coat of hair on them जिसको हम लोग wool की तरह यूज़ करते हैं. अब इनके पास इतना thick coat of hair एक्चुअली होता क्यों है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो हीट चैप्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर बोलो डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो ये आप उस चैप्टर में पढ़ोगे अबाउट द पुअर एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. तो बैड कंडक्टर जो होता है जिनको पुअर कंडक्टर भी बोलते हैं, आप एक चीज़ उसमें आप ये पढ़ोगे कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पुअर कंडक्टर मतलब यार आपको क्लास 6 में भी आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा. पुअर कंडक्टर मीन्स वो चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रही हो. मतलब येस, इट इज़ नॉट कंडक्टिंग हीट. ओके. सो एयर भी उसी में से एक है कि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. वो हीट को जल्दी ट्रैप मतलब कंडक्ट नहीं करता है. आपका जो हेयर है वो ऑन द दूसरी साइड क्या करेगा कि वो बहुत ज़्यादा एयर को ट्रैप करके रखेगा, अंदर फंसा के रखेगा. और हेयर तो आपका जो एयर है वो क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो ये क्या करती है? उस एनिमल को वार्म रखती है. अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो देखो एक शॉर्ट में मैं बताती हूँ. आपका जो एयर है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. पीसी मतलब पुअर कंडक्टर. और आपका जो हेयर है वो क्या करती है? एयर को ट्रैप करके रखती है, पकड़ के रखती है. तो इससे क्या होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका जो एनिमल है वो वार्म रहता है. वो क्या रहता है? वार्म. तो हेयर क्यों होती है? एनिमल्स को वार्म रखने के लिए. एंड यही हेयरी फाइबर्स से हम लोग क्या करते हैं? वूल को निकालते हैं.
I hope guys now this is clear to you, the topic is clear. Now animal fibers, wool and silk में अब हमें और क्या देखना है, याक वुल इज कॉमन इन टिबेट एंड लद्दाख. टिबेट और लद्दाख एक ऐसे दो जगह हैं जहाँ पे याक की वुल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत मिलती है. ठीक है, और एक और वुल होता है जिसको अंगोरा वुल बोला जाता है. ठीक है, तो अंगोरा वुल जो होता है ना वो अंगोरा गोट्स में से मिलता है. आप नाम से ही पता कर लोगे, इट्स अंगोरा वुल, सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम योर अंगोरा गोट्स, जो कि मतलब जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं आपकी अंगोरा गोट्स. मतलब वो ज़्यादातर हिली रीजन्स में पाई जाती है, सच इज योर जम्मू एंड कश्मीर. Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. उसका जो अंडर फर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है काश्मीरी गोट्स का. एंड इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पाशमीना शॉल्स. पाशमीना शॉल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया. वो इतना ज़्यादा फेमस है, यू कांट इवन इमेजिन गाइस. मतलब यू नो इट्स वेरी वेरी फेमस. तो पाशमीना शॉल जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो इन्हीं गोट्स में से, काश्मीरी गोट्स में से डिराइव किया जाता है, उनके अंडर फर में से, बिकॉज दैट इज सॉफ्ट. ओके, नाउ द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल. ठीक है, उनकी बॉडी पे भी, कैमल की बॉडी पे जो फर होता है वो भी कई बार वुल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है. तो ये है आपका लामा, इसको कोई लोग लामा भी बोलते हैं. एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो येल्ड वुल. अब नाउ यार एक लामा या फिर लामा एक एनिमल है दैट इज़ अ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट एनिमल है. आप उसकी पिक्चर्स ऑनलाइन जाके देख सकते हो. इट्स अ वेरी वेरी क्यूट एनिमल जिसको मतलब ह्यूमन से बहुत अच्छा लगाव होता है. एंड अल्पाका एक एनिमल है जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं. एंड वो क्या करते हैं, दे ऑल्सो येल्ड वुल इन देम. ओके, आई होप यू गाइज आर क्लियर टिल हियर. ओप्स, सो अब यहाँ तक आप क्लियर हैं. तो नाउ गाइज नेक्स्ट इज दैट फ्रॉम फाइबर्स टू वुल. अब फाइबर्स से वुल तक का हम लोग जर्नी देखेंगे. तो फ्रॉम फाइबर्स टू वुल तक की जर्नी आपको देख रही है, सो कम हियर विद मी. सो यहाँ देखो, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. पहले इसके बारे में जानते हैं कि फाइबर्स से वुल बनाने में सबसे पहला स्टेप यही होता है कि रियर और ब्रीड करना. रियर करना मतलब उनको आपको पाल के रखना होता है. एनिमल हस्बेंड्री नाम की एक चीज़ आपने पढ़ी होगी शायद अपने अर्लियर ग्रेड्स में, जीके वगैरह की बुक्स में. सो ये जो चीज़ होती है ना, मतलब एनिमल्स को आप रियर कर रहे हो आपके फ़ायदे के लिए, मे बी फॉर फूड, मे बी यू वांट टू गेट फूड फ्रॉम देम, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी, मतलब अपने फ़ायदे के लिए यू आर रियरिंग देम, मतलब उनको पाल रहे हो, राइट. सो उसको क्या बोलो, तो आपको फाइबर्स ऑब्टेन करनी होती है ना जब वुल से, जब आपको फाइबर्स से वुल बनाना होता है तो आप क्या करते हो, पहला वही क्या रियर करना पड़ता है आपको, उनको पालना पड़ता है, उनको अच्छा ग्रास, उनको अच्छा खाना देना पड़ता है. जैसे शिप्स हो गए. शिप्स क्या है, हर्बीवोरस हैं. वो क्या खाएंगे, ग्रास खाएंगे, लीव्स खाएंगे ऑब्वियसली. ठीक है, हर्बीवोरस एनिमल्स, दे आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स. अब और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको हम रियर करते हैं फॉर आर ओन बेनिफिट्स. ठीक है, फॉर आर ओन बेनिफिट्स. उनको हम पल्सेस खिला रहे हैं, कॉर्न वगैरह खिला रहे हैं, तो ये होता है. और ब्रीडिंग ऑफ शिप मतलब वो जो ब्रीड करता है ना, वो जब रिप्रोड्यूस करता है ना वो. सो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर. वंस द रियर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ एंड गेट फॉर गेटिंग वुल. मतलब एक बार क्या होता है कि उसके पास बहुत थिक लेयर ऑफ हेयर आ जाती है ना, तो उसको शेव कर दिया जाता है वुल को प्राप्त करने के लिए, फॉर गेटिंग वुल. ओके, अब यार ये जो प्रोसेस है ना फॉर गेटिंग वुल, ये कब किया जाता है, ज़्यादातर यहाँ देख लो, यहाँ लिखा है इन विंटर. ये कब किया जाता है, विंटर में. गाइस ये समर में नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है, अब आप ये भी भूलोगे. ठीक है, तो विंटर में किया जाता है, समर में नहीं किया जाता है. काफ़ी बार ये क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आपकी बुक्स में, तो मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको बता देती हूँ. वेट, हाँ, तो आप एक चीज़ देखना, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कुछ बताया था यहाँ पे कि आपका जो हेयर है वो क्या है, वो एयर को ट्रैप करता है, पुअर कंडक्टर होता है एयर. ये वाली टॉपिक अगर आपको याद है तो इसी से जुड़ा है. तो हेयर क्या करता है, एयर को ट्रैप करके रखता है, जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है. ठीक है, और एयर क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसीलिए ना बॉडी जो है ना एनिमल्स की वो गर्म रहती है, बॉडी स्टेज वार्म. अब बॉडी जब वार्म रहती है, बॉडी जब वार्म रहती है तो बॉडी को वार्म रहने की सबसे ज़्यादा कब ज़रूरत होती है, बॉडी को वार्म रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइस विंटर में. यस, सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है, विंटर में. और समर में क्या बॉडी को वार्म रखना है, नहीं, समर में तो बॉडी को वार्म रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है. समर में तो यू नीड टू, मतलब उसमें
जो एनिमल है उसके ऊपर हेयर नहीं रहेगा, स्टिल इट कैन सर्वाइव, इसीलिए ये चीज़ें समर में की होती जाती है, ठीक है। तो विंटर में क्या किया जाता है उनको, विंटर में एक्चुअली ये होता है कि, सॉरी फॉर द थिंग्स दैट आई सेड लास्ट टाइम, इट वॉज अ स्लिप ऑफ टंग। तो विंटर में क्या किया जाता है, उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, समर में उनको शेव ऑफ कर दिया जाता है फॉर गेटिंग वूल, एंड समर में जब उनका पूरा शेव ऑफ कर दिया जाता है, so now they are ready. Okay, now guys, processing fibers into wool. अब fibers को wool में प्रोसेस भी तो करना है, yes, तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल ये कैसा प्रोसेस है, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बताए गए। स्टेप 1 क्या है, फिर पहले इसको रीड करते हैं, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज समथिंग दैट लेट्स रीड, आई हैव टेकन इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली, तो आपके एनसीईआरटी में ही आएगा। First step is the fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. इसका मतलब समझो, first we will read and understand and then we are going to explain it to ourselves. Let's try explaining it to ourselves. Okay, the process is called shearing. The process is called shearing. तो यहाँ पे जो हमने important point पढ़ी उसको क्या करना होता है, उसको सबसे पहले आपको यार अंडरलाइन करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। Wait 1 second, I'll underline it in a better way. Okay, so what I'm doing is I'm underlining this particular thing here. The process is called shearing तक किया। Now next thing is that machines similar to those are used by barbers are used to shave off hair. Usually hair are removed during the hot weather. As I said you in last slide, this enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. तो इसको देख लो यहाँ पे कि woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Okay. Now, shearing does not hurt the sheep as it does not hurt when you get cut of your hair as cut or your father shaves hair his beard. Okay, do you know why the uppermost layer of skin, यहाँ पे do you know why के बाद जो है ये important है, ये याद रखना। The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of the sheep grow again as just your hair does. Okay, तो guys इसमें हम लोगों ने all over क्या देखा, इसमें हम लोगों ने ऑल ओवर ये देखा कि शेयरिंग क्या होता है। पहले की क्या चीज़ देखी कि शेयरिंग क्या होता है, दूसरी ये चीज़ देखी कि फिर अब वुलन यान मिलती है, और तीसरी चीज़ क्या देखी कि उनकी भी हमारी जैसी शेविंग होती है एंड उनका जो लेयर होता है वो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, ठीक है, जैसा स्कैल्प होता है वो। तो ये 3 चीज़ें देखी, और आपको आप जब ये रीड करोगे और ऐसे अंडरलाइन करोगे ना, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। इट्स अ स्टडी टेक्निक गाइस दैट आई हैव यूज्ड इन माय प्रीवियस क्लासेस एंड आई रिकमेंड यू ऑल टू यूज दिस वन अगेन। सो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले उसकी शेयरिंग की जाती है। शेयरिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जब उसका जो स्किन का जो लेयर होता है वो रिमूव किया जाता है। स्किन का ऊपर जो आपका वुल का लेयर होता है उसे रिमूव किया जाता है। हेयर जो होती है फाइबर्स वो रिमूव की जाती है, उसको शेयरिंग बोलते हैं। फिर इन जो वुलन फाइबर्स को रिमूव किया उनसे क्या बनता है, वुलन यार्न। और ये किस में किया जाता है, विंटर सीजन में क्या होता है गाइस, उनको खाना खिला रहे एंड ऑल दे आर डूइंग, ठीक है। अब विंटर सीजन में ये हो जाता है। उसके बाद विंटर सीजन के बाद क्या आता है, समर सीजन, और समर सीजन में रिमूव करते हैं ताकि वो अपने प्रोटेक्टिव कोट के बिना रह पाए, क्योंकि समर में वैसे भी उनको हीट की ज़रूरत नहीं, लेकिन विंटर में उनको ज़रूरत है हीट ट्रैप होने की। ओके, तो ये देखा हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने अंडरलाइन किया था ये, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। तो जैसे हमारा जब हेयर वगैरह कट हो रहा होता है, आपके फादर ने अपना बियर्ड वगैरह शेव कराया होगा, राइट, तो वो जब हो रहा होता है ना, तो उसमें कुछ वैसे ही अप्लायंसेस सिमिलर टू दैट यूज़ किए जाते हैं। विद दैट अपर लेयर ऑफ स्किन इज डेड, अपर लेयर स्किन डेड होती है, तो इसीलिए जैसे हम तो ज़्यादा उनको हर्ट नहीं होता है, ठीक है, इट डज नॉट हर्ट देम। विद दैट नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जैसे कि हमारे हेयर बाद में ग्रो हो जाते हैं और फिर से कट कराने पड़ते हैं, वैसे उनके भी ग्रो हो जाते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि फिर कभी ग्रो ही नहीं होंगे। ओके, सेकेंड देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था, शेयरिंग। सेकेंड स्टेप क्या था, फिर से वही टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग। द sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove and is scouring, this is called scouring, ठीक है। तो scouring क्या होती है ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब जो ये शेयर कर लिया, मतलब जो कट शेव कर लिया है, अब उसको वॉश करना है, उसको क्लीन करना है, उसको क्या बोलते हैं, स्काउरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज दैट आफ्टर स्काउरिंग सॉर्टिंग इज डन। सॉर्टिंग आफ्टर स्काउरिंग क्या होता है, थर्ड प्रोसेस, ये थर्ड यहाँ पे आएगा गाइज, यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है।
तो आपका स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग किया जाता है, जिसमें उसको अलग अलग टेक्सचर को सॉर्ट करना मतलब क्या कि अलग अलग टेक्सचर को सॉर्ट मतलब आप अलग अलग चीज़ों को मतलब ग्रुप कर रहे हो, राइट। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा एक चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो इसी तरह इसको भी सॉर्ट किया जाता है कि अलग अलग टेक्सचर को अलग अलग जगह कर दिया जाता है। मतलब ये टेक्सचर का अगर ऐसा टेक्सचर का हुआ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऐसा टेक्सचर का एक जगह, ऐसा टेक्सचर का एक जगह। ये सिर्फ एग्जांपल है गाइस, जैसा ट्रायंगल एंड स्क्वायर टेक्सचर्स होते नहीं हैं। मतलब एक टाइप के एक टाइप के टेक्सचर्स को एक जगह, एक टाइप के टेक्सचर्स को एक जगह, उनका क्वालिटी पे भी ये डिफर करता है, राइट। तो उनको सॉर्ट किया जाता है इनटू ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट इज दैट द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स। अब यार देखो, कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग स्वेटर पहनते हैं, राइट। वी डू वियर स्वेटर, हम लोग भी स्वेटर पहनते हैं। तो हम लोग जब स्वेटर पहनते हैं तो आपने देखा होगा उस पर छोटे छोटे बर्ड्स हो जाते हैं, उनको बर्ड्स बोला जाता है, इफ यू डोंट नो। तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे हो जाते हैं एंड वी डोंट लाइक इट, तो हम लोग उसको कट करना, उसको शेव करना प्रेफर करते हैं, राइट। तो ये जो छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो हो जाते हैं ना, ये अब हेयर में से निकालने होते हैं। तो वो जो हेयर ऐसे उनको मिल गया, उसमें से ये बर्ड्स उनको पहले क्या करने होते हैं, रिमूव, मतलब सेपरेट कर रहे होते हैं वो। ओके, सो यही वही वर्ड्स है ये जो हमारे स्वेटर में कभी कभार दिखते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो वूल है, इट इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। इस प्रोसेस के बाद इट इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब देखते हैं फिफ्थ प्रोसेस क्या बोल रही है। सो फिफ्थ प्रोसेस के अकॉर्डिंग द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। ठीक है, तो जो फाइबर्स है उनको आप बहुत सारे कलर्स में कलर कर सकते हैं और उनको करा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो नेचुरल फ्लीस होता है वो ज़्यादा कलरफुल तो होता नहीं कि एक ब्लैक है, एक रेड है, एक ग्रीन है। वो कुछ जनरल कलर्स को होता है, जैसे ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। तो इन तीनों के अलावा भी वो काफ़ी और कलर्स है जिनमें उन्हें डाई किया जाता है, बिकॉज वी डू लाइक टू वेयर कलरफुल क्लोथ्स एंड दैट, यस। सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे देखो नेक्स्ट थिंग क्या है कि द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब उन्हें स्ट्रेट किया जाता है, उनको कोम किया जाता है एंड उनको यार्न में रोल किया जाता है। ओके, अब उनको रियल किया जाता है एंड देन उनको स्पन किया जाता है, ठीक है, वोव किया जाता है इनटू वुलन क्लॉथ। वोव करना मतलब उनको मतलब वीविंग में देखो एक्चुअली होता क्या है, वोव करना मतलब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये ऐसे आपने दो फाइबर्स लिए, उनको आपने एक साथ लिया, अटैच किया कुछ इस तरह से, और फिर वो क्या बन जाता है, आपका एक क्लॉथ बन जाता है वुलन का। आपने देखा होगा टेक का मतलब एक ऐसी मतलब यू नो दो हाथ से चलने वाली वो कुछ होती है, कोई निडल टाइप की एकदम लंबी सी होती है एंड उससे किया जाता है। आई डोंट रियली रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ इट, बट या इट्स समथिंग लाइक दैट। सो नाउ गाइज नेक्स्ट इज दैट हम लोगों ने जो भी प्रोसेसेस देखे, अभी हम लोगों ने कितने प्रोसेसेस देखे, 6 प्रोसेसेस देखे। उनके यहाँ पे क्या है बताए हुए फिगर्स में आपके एनसीईआरटी के बुक्स में। पहला था शेयरिंग, मतलब देखो शेयर किया जा रहा है, ये देख लो आप। देन दूसरा था स्काउरिंग, मतलब उसको क्लीन किया जा रहा है, देख रहे हो आप, क्लीन किया जा रहा है ताकि सारा ग्रीस वगैरह जो भी डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। नेक्स्ट क्या है, स्काउरिंग इन मशीन, स्काउरिंग किया जा रहा है अब एंड देन रोलिंग इनटू यार्न, ठीक है, देन रोलिंग इनटू यार्न। सो ये कुछ दिखाए हैं, कुछ फिगर्स हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट इज अबाउट सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो व्हाट एग्जैक्टली सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछ लिया होता है डायरेक्ट 1 मार्कर, व्हाट इज सेरीकल्चर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए। तो यार देखो, सिल्क वॉर्म को जब आप रियर करते हो ना, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, मतलब उनको जब रखते हो सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, उसको सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि एनिमल फाइबर्स में 2 एनिमल फाइबर्स पढ़ेंगे, एक वुल पढ़ा, अब एक सिल्क भी एक एनिमल फाइबर ही है। तो जब आप उनको रियर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोला जाता है। ये डायरेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन आपका डन। एंड गाइज गेस व्हाट, हमारा पूरा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है फॉर द डे। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जानी, बहुत सारी चीज़ें सीखी गाइस, एंड आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करके आनी है मेरे नेक्स्ट सेशन में जो कि नेक्स्ट मंडे होगा। सो तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय, लव यू ऑल।